everybody. I hope you are having a fantastic Sunday till now, and we will make sure that the next 40 to 45 minutes are even more brighter, more sunnier. So, this will be a special workshop where we have a special guest today. We have Kaustav Mishra, All India Rank 11 in GATE 2022. And in this particular workshop, let us learn from him about his struggles, about his strategy, and so that he can also guide you for your better future, for your better rank. So now let us welcome Kaustav Mishra, All India Rank 11, and a very congratulations, Kaustav. Thank you, You sir. make us proud. Thank you, sir. So, in the last 1 year, how your life has been dramatically changed after getting the All India Rank 11? Sir, before rank, a lot of people didn't know about me, but right after getting a very good rank, now a lot of people and a lot of platforms know me now. So after getting a good rank now, I have, somehow attained some fame. Okay, so now your life is dramatically changed and you're guiding to many so Yeah. that they can also inspire from your journey. Yes, I have been talking with a lot of students and I have been sharing my journey after getting a good rank. Okay, so friends, in this particular workshop, Kaustav Mishra will guide you and tell about his preparation, about his strategy, and at the end, I will be again coming back to take your doubts and asking the questions on your behalf to Kaustav Mishra. So, Kaustav, now stage is all yours. Please carry on. Thank you, sir. So before we start our today's session, let me first give you a brief introduction about myself. So my name is Kaustav Mishra. I am BTech from NIT Allahabad. I am a 2020 batch pass out. In this year in GATE 2022, I got All India rank 11 in Mechanical Engineering and All India rank 17 in Engineering Sciences. So today's session is basically divided into 4 parts. In the first part, I'll be sharing with you guys my journey, that is how I got All India rank 11 from All India rank 942 last year. Secondly, and the most important part of the session, we'll be discussing about magic recipe for getting All India rank under 100. And after that, I'll be discussing about some common mistakes that an aspirant does in his GATE journey. And at last, I'll be taking your doubts and queries. So let us start our first part. That is my story, that how I got All India rank 11. So like every other student, when I was in college, I was also confused with the 3 P's. Means I was confused that whether I should go for placement or I should go for preparation or I should go for post graduation. So somehow I decided to go with the second option. So you must be wondering why. Why did I go for GATE? So there is a very funny story behind me choosing GATE. So I still remember जब मैं कॉलेज में था तो सेकेंड ईयर में एंट्री लेते से ही वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही टोल्ड मी अबाउट द गेट एग्जामिनेशन. उसने मुझे बताया कि एक गेट करके कोई एग्जामिनेशन होती है और अगर हम गेट में अच्छी रैंक लेके आते हैं तो हम PSUs में जॉब्स ले सकते हैं. उस समय तक मुझे गेट और PSUs के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था. सो ही टोल्ड मी अबाउट दी PSUs एंड ही टोल्ड मी दैट कि अगर गेट अच्छे से रैंक से हम क्लियर करते हैं सो PSUs में हमारी जॉब लग जाती है, राइट. वी गेट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स and one of the highest paying entry level jobs in the core sector and in the government sector. So that's when I decided to go for the GATE and that's when I decided to go for the PSUs. Means that friend of mine pitched me the idea of GATE so well that I couldn't say no to this offer. So इसी कारण से मैंने GATE की तैयारी करने का सोचा. So well, I decided to go for the PSUs because of the perks. Well, not this one. Actually, I decided to go for the PSUs because of these perks. So at that time, I was in second year of my college, so I was not matured enough. So these materialistic things, wooed me. So that's why I decided to go for the PSUs. Now, I started my GATE preparation when I was in third year of my college. तो जब मैं कॉलेज में था तो थर्ड ईयर से मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. अब मैंने गेट की प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट तो कर दी थी बट आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट गेट क्योंकि मैं हॉस्टल में उस समय रहता था एंड हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना इज़ अ वेरी टफ टास्क. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड इन हॉस्टल एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है हॉस्टल में. सो व्हेन कोविड हैपेंड एंड व्हेन आई रिटर्न बैक होम तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय फिर बचने लग गया. तो कोविड मेरे लिए कह सकते हैं कि एक बून की तरह साबित हुआ या वरदान की तरह साबित हुआ कि जैसे ही कोविड के बाद मैंने देखा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय बच रहा है और मेरे पास कॉलेज की क्लासेस भी मुझे अटेंड नहीं करनी है.
सो जो मेरे पास पूरा का पूरा जो समय बचने लग गया था, तो उसको मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन में डाल दिया। देन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर वेरी वेरी सीरियसली फॉर गेट। तो उसके बाद मैंने एक के बाद एक सब्जेक्ट्स बहुत सारे कंप्लीट किए, एंड आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, एंड आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट एज वेल। So after this, I was able to complete my course, I guess around by November 15, 15 नवंबर तक मेरा कोर्स कंप्लीट मैंने अच्छे से कर लिया था। फ्रॉम नवंबर 15 टू नवंबर 30, मतलब लास्ट नवंबर तक, आई वॉज एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग सब्जेक्ट टेस्ट एंड द पार्ट टेस्ट एज वेल। तो मेरा पूरा का पूरा मैंने सब्जेक्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए। सो दिसंबर एंड जनवरी 2 महीने मेरे पास थे टू बी एबल टू गिव फुल टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो मैंने पूरा के पूरा दिसंबर और जनवरी फुल लेंथ बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ जेई बैकग्राउंड। मैंने प्रीवियसली जेई क्लियर करके रखा है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे होता है, आई वॉज अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स पहले से ही। सो दैट हेल्प मी अ लॉट एज वेल। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात भी करूँ तो आई वॉज डूइंग वेरी गुड एट मॉक टेस्ट। अगर मैं मॉक टेस्ट का अपना परफॉर्मेंस के बारे में देखूँ तो मेरे मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे, कि मैं अराउंड 25 टॉप 25 टॉप 20 या कभी बहुत बार तो टॉप 10 में भी रहता था। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट इज़ शॉर्ट नोट्स बनाना, टेस्ट एनालिसिस करना या प्रैक्टिस करना, ये पहले से ही मुझे जेई प्रिपरेशन के समय से ही पता थी। सो इसका मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया कि मुझे थोड़ा सा बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा एक एज मिल गया, सिंस आई वॉज अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम माई जेई एक्सपीरियंस। तो मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, एंड आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, एंड आई वॉज ऑल सेट फॉर द गेट 2021 एग्जामिनेशन। बाय द वे, इफ़ आई टॉक अबाउट माई जेई पार्ट, सो जब मैंने जेई दिया था, दैट टाइम जेई यूज टू बी अ पेन पेपर टेस्ट, कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता था उस समय जेई। सो गेट 2021 वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो गेट 2021 मेरे लिए पहला समय था कि जब मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ही दे रहा था। सो ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुस के मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, सो टू माई सरप्राइज आई नोटिस दैट कि जो मुझे सिस्टम अलॉट किया गया है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। मुझे वो सिस्टम थोड़ा लैगिश फील कर रहा था, और जो माउस मुझे अलॉट किया गया था वो भी मुझे काफ़ी सेंसिटिव लग रहा था। तो मैंने एक दो बार सिस्टम चेंज भी किया, तो उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि सारे ही सिस्टम एक जैसे ही हैं, और मुझे माउस सही नहीं लग रहा था। राइट, आई फेल्ट दैट द माउस वॉज ओवर रिस्पॉन्सिव। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बाय गॉड्स ग्रेस आई कम फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि मैं जो घर पे जो सिस्टम्स यूज़ करता हूँ, दैट आर वेरी गुड सिस्टम्स। तो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो दिए थे, वो मैंने घर पे बैठ के एक अच्छे सिस्टम पे दिए थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक्सपीरियंस। सो मुझे इतना आइडिया था नहीं कि सिस्टम्स एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे होते हैं, बट मुझे ये पता था कि जो सिस्टम्स अलॉट किए जाते होंगे वो ठीक ठाक ही रहते होंगे। बट टू माई सरप्राइज, जो मुझे सिस्टम अलॉट किया गया था या जो भी मैंने सिस्टम्स देखे, वो इतने अच्छे थे नहीं। अगर मैं गेट एग्जामिनेशन की बात करूं, तो गेट एग्जामिनेशन इज 80% क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यू हैव टू यूज़ द वर्चुअल कैलकुलेटर अ लॉट ऑफ टाइम्स, और वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए आपको माउस का एक्सटेंसिव यूज़ करना होता है। तो मैंने क्या देखा कि जब भी मैं माउस से जाके मान लीजिए कि मुझे एक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, राइट, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मान लेते हैं कि मुझे 55 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं 55 इंटू 28 मल्टीप्लाई करने जाता था, तो 55555 या 2222 ऐसे काफ़ी बार नंबर्स प्रेस हो जा रहे थे। सो ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा फिर माउस को हैंडल करने में ही समय देना पड़ गया। तो शुरू का जो 1 घंटा था मेरा, वो पूरा का पूरा मेरा सिस्टम से यूज़ टू होने में और ओवर रिस्पॉन्सिव माउस से टैकल करने में ही निकल गया। सो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस शुरू में, एंड जो भी मेरे नंबर अच्छे मैं लेके आया लास्ट ईयर भी, वो लास्ट के 2 घंटे जो मैंने परफॉर्म किया है उसके बदौलत ही मैं लेके आ पाया। सो 73 नंबर टोटल मैं लास्ट ईयर लेके आया था, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 942 लास्ट ईयर। तो अगर मैं जो भी मैंने आपको अभी तक कहानी बताई है, इसको अगर मैं विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। दैट इज़ कि somehow ड्यू टू द बैड सिस्टम आई वॉज नॉट एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स एंड हैंस अ वेरी गुड रैंक। सो इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मैं गेट 2021 में
डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाया, सो आई फेल्ट डिफ्लेटेड लाइक अ बलून, मीन्स आई वॉज डिप्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। सो मैंने ऐसा सोचा कि या तो मैं अब कोडिंग फील्ड में जाता हूँ या तो मैं डेटा एनालिस्ट वाले फील्ड में जाता हूँ, राइट। और उसके 3-4 महीने तक मैं कन्फ्यूज ही रहा और मैंने कुछ किया भी नहीं। बट वन डे व्हेन आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब, आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ अभिनव बिंद्रा। सो व्हेन आई वॉच दिस वीडियो, ये जुलाई एंड की बात है कि जब मैंने ये वीडियो देखी, सो दिस वीडियो प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अ बिट अबाउट दिस वीडियो एज वेल कि 2004 में एथेंस ओलंपिक्स की बात है ये, कि अभिनव बिंद्रा को इंडिया की तरफ से वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स समझा जा रहा था, जो कि इंडिया को ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में मेडल ला के दें। एंड ट्रस्ट मी, अभिनव बिंद्रा fired the 10 worst shots of his entire career in that final. And he has been preparing for this event all his life. वो बचपन से ही इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे। बचपन से उनका सपना था कि इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आए, राइट। बचपन से ही उनको उनके पेरेंट्स ने शूटिंग में डाल दिया था। सो आफ्टर दिस फेलियर, व्हेन अभिनव बिंद्रा रिटर्न्ड होम, ही गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज कोच आफ्टर 7 or 8 days. हिज कोच गाबी कॉल्ड हिम एंड सेड दैट कि जिस टाइल पे अभिनव बिंद्रा खड़े होके शूटिंग कर रहे थे, दैट वाज अ बेसिकली अ वुडन टाइल एंड दैट टाइल वाज अ शेकी टाइल। तो किसी भी अच्छे या बहुत ही प्रो लेवल एथलीट के लिए, इनफैक्ट जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेके जो एथलीट आए थे, उनके लिए भी उस टाइल पे खड़े होके शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। मतलब कि उस टाइल पे खड़े होके शूट करके टारगेट को हिट करना वॉज नियरली इम्पॉसिबल। सो व्हेन अभिनव बिंद्रा केम टू नो अबाउट दिस, ही फेल्ट वेरी वेरी बैड कि जस्ट बिकॉज ऑफ बैड लक ही कुडंट गेट अ मेडल फॉर हिज कंट्री। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी थी, बट स्टिल एक छोटे से बैड लक के कारण वो अपना जो सपना था वो अचीव नहीं कर पाए। तो इसके बाद अभिनव बिंद्रा ने क्या किया कि उन्होंने अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना और स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत ही चीज़ें अलग तरीके से करना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट हो गए चीज़ों को लेके भी। सो उन्होंने ये भी कहा था कि ही ऑल्सो ड्रैंक याक मिल्क टू इंक्रीज हिज फोकस। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करी नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए। और हम सबको पता है कि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके वो आ पाए। सो जब मैंने ये कहानी सुनी और जब मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट किया, तो मैंने अपने आप को एक टैग दे दिया था कि मैं समाओ कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मैं बिग प्लेटफॉर्म्स पे जाके फेल कर जाता हूँ। मेरे दिमाग में मैंने ये सेट कर लिया था, या ये थॉट एम्बेड हो गया था ड्यू टू द वेरियस फेलियर्स। क्योंकि अगर मैं जेई समय की भी अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी जेई एडवांस में कि मुझे आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिल सके। सो आई हैड टू गो टू एनआईटी। सो मेरे दिमाग में ये थॉट उसी समय से एम्बेड था कि मैं बिग प्लेटफॉर्म्स में जाके आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एज पर माई कैलिबर, और मैं अच्छे से बिग प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ। तो जब मैं गेट में भी जाके फेल हो गया ना, तो ये चीज़ और ज़्यादा मेरे दिमाग में घुस गई कि मेरे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो हो ही नहीं सकता है। मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई थॉट लाइक दैट। सो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो अपने आप को जो टैग दे के रखा है कि मैं समाउ बिग प्लेटफॉर्म पे जाके फेल हो जाता हूँ, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। ऐसे भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो लक के कारण मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके फेल हुए हैं। तो मेरा जो फेलियर है दैट इज़ नोवेयर। अगर मैं अभिनव बिंद्रा के फेलियर से उनको कंपेयर करूं कि उनके उनके लिए तो मेडल लाने के लिए पूरी कंट्री इंतजार कर रही थी, राइट। प्लस ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है और गेट तो हर साल ही आता है। तो मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स है ये वीडियो देखने के बाद छोटी लगने लग गई, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, एंड दिस टाइम जस्ट लाइक अभिनव बिंद्रा आई विल ऑल्सो लीव नो स्टोन्स अनटर्न फ्रॉम माई साइड। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी मैंने तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी अगस्त से। एंड दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज कि लास्ट टाइम मैं एक स्लो पीसी या स्लो सिस्टम के कारण रह गया था, तो इस टाइम मैंने उसको ही एलिमिनेट कर दिया। सो दिस टाइम व्हाट आई डिड इज आई परचेज एन ओल्ड पीसी। मेरे पापा ने मुझे एक ओल्ड पीसी खरीद के दिया और मैंने आखिरी के 3 महीने इसी ओल्ड पीसी पे पूरी प्रैक्टिस करी। तो इतनी प्रैक्टिस ओल्ड पीसी पे करने के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम गेट 2022 में एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं गया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सिस्टम से यूज टू हूँ और मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई। इस बार भी सिस्टम वैसा ही था, बट दिस टाइम आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिस्टम।
तो इस टाइम मैं क्या कर सका कि अच्छा परफॉर्मेंस एक दे पाया एंड आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद माई टैलेंट एंड अचीव द रैंक विच आई डिजायर्ड। सो ये थी मेरी स्टोरी कि ऐसे मैंने 942 रैंक आने के बाद भी मैं नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया एंड आई वॉज एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। So this was all about my story. Now let us discuss about the most important part of today's session. That is the magic recipe for getting all India rank under 100. The first ingredient of this recipe is the right mindset. A lot of us, what we do is we do the hard work, we do practice, we revise properly, we are consistent, we give the test series, we have made short notes, we are patient, and we have the conceptual clarity as well. And still after doing all these things correctly, we are not able to get the desired results and we are not able to get the desired rank. Do you know why? Because there is one important ingredient which is missing in this list, that is belief. हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितनी भी अपनी तरफ से तैयारी कर लें, लेकिन हम अगर अंदर से सेल्फ बिलीफ ही नहीं रखेंगे और हमारा एक कॉन्करर माइंडसेट नहीं रहेगा, तो हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी बोर्ड एग्जामिनेशन कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स मिलने ही हैं। वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट दी competitive examination, and that too India level in competitive examinations. And as we all know, competitive exams are very brutal. You might do all the things properly and still you might end up failing. So हमें क्या करना है कि हमें सारी चीज़ें सही तरीके से करना है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से करने के बाद भी ये 70% ही प्रिपरेशन का पार्ट है, बाकी जो 30% है दैट इज़ माइंडसेट। तो हमें एक अच्छा माइंडसेट लेके चलना है, एक कॉन्करर माइंडसेट लेके चलना है और हमें खुद पे सेल्फ बिलीफ रखना है in order to get the desired rank. The second ingredient, and trust me, this is the most important ingredient when I talk about cracking India level examination. So the second ingredient is handling pressure. So a lot of us, what we do is we are very good at mock test. Means if we look at our mock test performances, no, so we'll look like this guy to you. Means we are like Jasprit Bumrah. Means fast and accurate. कि स्पीड और एक्यूरेसी यही तो चाहिए किसी भी इंडिया लेवल एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए, राइट? बट द सेम गाय इन द गेट एग्जामिनेशन somehow becomes like this guy, inaccurate. That's what pressure does to you. It makes you a less efficient version of yourself. तो अगला सवाल ये है कि हम प्रेशर हैंडल करना आखिर सीखें कैसे? How do we handle pressure? In order to answer this, I would like to ask you a very simple question. मान लेते हैं कि टीम इंडिया को आखिरी की 6 बॉल पे 15 रन चाहिए। सो हु वुड यू चूज टू बी ऑन स्ट्राइक? वुड यू वांट MS धोनी टू बी ऑन स्ट्राइक और वुड यू वांट सम डेब्यूटेंट टू बी ऑन स्ट्राइक? ऑब्वियसली धोनी, सबका आंसर यही होगा। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज MS धोनी हैज बीन इन दिस सिचुएशन काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर. He knows how to perform in this situation and he knows how to act. This is the answer of our question as well. That is, the best way to handle pressure is to put yourself in that situation again and again. That is, in short, practice. कि हमें क्या करना है, घर पे बैठ के इतने सारे मॉक टेस्ट दे देने हैं कि हमें जब एग्जामिनेशन में हम घुसें तो हमें ऐसा लगे ही ना कि हम कोई अलग काम कर रहे हैं या हमें कोई प्रेशर फील हो। हमें ऐसा लगे कि दिस इज़ आवर यूजुअल रूटीन, कि ये तो मैं रोज़ करता हूँ या ये तो मेरा रोज़ का ही रूटीन है। तो हमने अगर अपने घर पे बैठ के इतने सारे टेस्ट अगर दे दिए तो हम भी कुछ इन जनाब जैसे बन जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि इन जनाब का कुछ लेवल ज़्यादा ही ऊपर है या कुछ ज़्यादा ही काम एंड कंपोज्ड है ये प्रेशर सिचुएशन में, तो अगर हम ऐसे नहीं भी बन पाए तो हम ऐसे तो बन ही जाएंगे। दैट इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, कि हम प्रेशर हैंडल करना या प्रेशर एब्जॉर्ब करना तो सीख जाएंगे और हम एक स्पॉन्ज भी बन गए ना तो हमारा काम तो हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैंने भी खुद अराउंड 25 to 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे गेट की एग्जामिनेशन के पहले। तो जब मैं गेट की एग्जामिनेशन हॉल में घुसा तो 2022 में मुझे ज़्यादा प्रेशर फील ही नहीं हुआ, मुझे एक ये यूजुअल रूटीन जैसा ही लगा जो मैं रोज़ करता था। सो दैट इज़ हाउ यू हैंडल प्रेशर। सो बायजू एग्जाम प्रेप is also coming up with all India open mock test for which you can register free। और ये टेस्ट 12th of October से लेके
19th ऑफ अक्टूबर तक लाइव रहेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड मैजिक इंग्रेडिएंट ऑफ आवर रेसिपी, that is pushing yourselves at tough times. A lot of us, what we think that the GATE journey looks like this. That is, we complete the course, then we go for practice and revision. After that, we give mock test and tada, all India rank under 100. Well, I hope that was true, but ऐसा नहीं होता है. But actually, the GATE journey somehow looks like this. That is, it is filled with a lot of roadblocks and hurdles. और जैसे ही हम ये हर्डल्स और रोड ब्लॉक्स को अपनी जर्नी में देखते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट प्रिपरेशन क्विट भी कर देते हैं। तो ये जो रोड ब्लॉक्स जो हमारी जर्नी में है, इनको देख के या इनको इनकाउंटर करके हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है और हमें अपने आप को इन टफ टाइम्स में पुश करने की कोशिश करना है, राइट। इन रोड ब्लॉक्स को या हर्डल्स को एक हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह देखना चाहिए कि इन हर्डल्स को हम अगर पार कर पाएंगे तभी हमारा एक अच्छा रैंक आ पाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक पहले वाला ही एक आइडियल गेट जर्नी वाला पाथ सेट होता है, राइट। पहले वाला जो पाथ हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, लेकिन रियलिटी में दैट पाथ इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी में जो पाथ है दैट इज फुल ऑफ हर्डल्स एंड रोड ब्लॉक्स। तो ये जो हर्डल्स और रोड ब्लॉक्स हैं, we should consider this not as something that has been put in our way to stop ourselves from achieving our rank. Rather, we should consider this as the part of the journey itself, कि ये सब जर्नी का ही पार्ट है। तो अगर हमें ये माइंडसेट हम लेके चलेंगे तो we will be able to push ourselves at tough times as well. Now let us discuss about the third part of today's session, which is some common mistakes. The first mistake that a lot of aspirants do that is they are not able to complete their courses on time. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना कोर्स ही सही समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का कोर्स दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो रहा होता है, कुछ लोगों का कोर्स जनवरी तक खिंच जाता है, और कुछ जो महारथी होते हैं उनका तो कोर्स इनफैक्ट फरवरी में ख़त्म होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज़ वन ऑफ द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द जर्नी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अगर हमारा कोर्स ही बड़ी लेट से कंप्लीट होगा तो जो बाकी की चीज़ें हैं दैट इज़ रिविजन, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, उसके लिए तो हमारे पास समय बचेगा ही नहीं। तो हमें अपने तरफ से इंश्योर क्या करना है कि किसी भी कीमत पे हमारा जो कोर्स है वी शुड कंप्लीट दैट कोर्स बाय नवंबर एंड, कि नवंबर के एंड में हमें वो कोर्स कंप्लीट किसी भी तरीके से कर लेना है। रीज़न बीइंग कि नवंबर में कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दिसंबर और जनवरी है टू बी एबल टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। सो कोर्स को हमें सही समय पे कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग शॉर्ट नोट्स. In the initial days of our preparation, our study table somehow looks like this. But when I talk about the final days of our preparation, the same study room looks like this. Tell me one thing, that if I tell you to revise all these GATE subjects, that too in a single day from this huge bundle of books, do you know how your brain will perceive this task? Your brain will go like सो इस बुक्स के बंडल से 14 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना, इतने सारे पेज पलटाना और एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। एंड इसीलिए इस टास्क को हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही टफ टास्क की तरह देखता है। बट अगर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होते तो हमारा जो इतनी सारी जो बुक्स आपको दिख रही हैं, ये सारी जो बुक्स का जो कंटेंट है वो एक छोटी सी नोटबुक में हम फिट कर सकते हैं। तो इफ़ आई टेल यू दैट you have to revise the same all subjects from this tiny little notebook, do you know how your brain will react to that? Your brain will feel relieved. That is, your brain will feel like So what you have done is, by making short notes you have made your brain to go from to relief. Plus making short notes saves you a hell lot of time. So that's why I ask all the aspirants that are aiming for very good rank to create short notes. So on the screen you can see my short notes, the notes which I prepared during my preparation. So short notes को लेके सिंपल सा एक लॉजिक हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि राइटिंग अच्छी हो या ना हो। मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी ना भी हो, सो मेक श्योर दैट योर शॉर्ट नोट्स आर नीट एंड क्लीन. सेकेंडली, कीप योर शॉर्ट नोट्स कंसाइज. एंड द थर्ड पार्ट इज कि शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें कवर करना चाहिए. मीन्स योर शॉर्ट नोट्स शुड कवर एवरीथिंग. सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज डूइंग PhD इन द सब्जेक्ट्स
that is over practicing. So if I talk about GATE has a lot of subjects. ऐसा नहीं है कि GATE में कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पसंद के सब्जेक्ट्स हैं और GATE उनमें से ही पूछेगा, एंड उनमें से पूछ के ही अगर आप और बहुत ही अच्छे तरीके से उन सवालों को सॉल्व कर देते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी. ऐसा नहीं होगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनका जो प्रिपरेशन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि जिस सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छे हैं उनमें तो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होता है, बट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें वो अच्छे नहीं होते हैं, या जो उनके वीक सब्जेक्ट होते हैं उनमें उनका जो प्रिपरेशन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. तो हमें अपनी तरफ से मेक श्योर क्या करना है कि हमें सारे ही टॉपिक्स को या सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना है. और हम अगर अपने वीक सब्जेक्ट्स को, अगर अपने जो प्रो वाले जो सब्जेक्ट्स हैं या जिन सब्जेक्ट्स में हम स्ट्रांग अपने आप को फील करते हैं, अगर वहाँ तक नहीं भी लेके आ पाए तो हमें एटलीस्ट अपने वीक सब्जेक्ट्स को एक ऑप्टिमम लेवल तक तो लेके आना है, ताकि हम क्या कर सकें कि गेट में अगर हमसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम उस सवाल को टैकल कर सकें. तो हमें ओवर प्रैक्टिसिंग से बचना है और सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पॉर्टेंट ट्रीट करना है. द लास्ट मिस्टेक इज वेटिंग टू मच टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट. हमें ऐसा लगता है कि हमें टेस्ट देने के पहले ही सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेनी है, कि हर सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा तभी हम जाके टेस्ट देंगे, हमारे दिमाग में हम ये फिट करके चलते हैं. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. कोर्स कंप्लीशन के जस्ट बाद हम कितने भी अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट करें, लेकिन कोर्स कंप्लीशन के जस्ट बाद हमारा कुछ जो लेवल होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट, कि हम एक बेसिकली नूब ही होते हैं, कि हमें उस सब्जेक्ट्स के बारे में जस्ट अभी हमने जो टीचर ने हमें जो नॉलेज ट्रांसफ़र किया हमने वो जस्ट ग्रास्प किया है, राइट. टू बिकम अ प्रो इन दैट सब्जेक्ट यू नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का डेवलप करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट. तो ये जो एक नूब से लेके जो एक प्रो तक का जो ट्रांजिशन होता है वो हम टेस्ट देके करते हैं. और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हम टेस्ट देके प्रो बनते हैं, हम प्रो बन के टेस्ट नहीं देते हैं. मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा कि ये हमें अपने दिमाग में बात डाल लेनी है कि हम टेस्ट देके प्रो बनते हैं, हम प्रो बन के टेस्ट नहीं देते हैं. सो वी हैव टू गिव एज मैनी टेस्ट एज पॉसिबल. सो जितनी भी चीज़ों के बारे में अभी तक हमने इस सेशन में बात करी है, इफ़ यू फॉलो दी मैजिक रेसिपी, राइट, टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, अगर आपने उसको सीरियसली फॉलो किया, एंड इफ़ यू डू नॉट कमिट दी मिस्टेक्स विच आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, I can guarantee you that next year you will be walking out of your examination hall just like this guy. Now, on all your behalf, I am asking few questions to Kaustav so that he can reply to your particular query. So, Kaustav, Santosh is asking that when you actually started to prepare for the GATE exam, and when you just started, have you ever thought that you achieve All India rank 11? So when I started, if I remember about starting GATE preparation, I started in third year. Third year के में starting में मैंने start किया था GATE की preparation. And regarding that कि did I ever think about getting All India rank 11? So there is a one board in my house that on that board I wrote that I will get All India rank 1 in XE and mechanical, the both exam which I was giving, right? So in my mind I was already very clear that I will go for the 1 rank. तो अगर 1 नहीं भी आया तो मैं एटलीस्ट 11 पे आ गया. तो एक कहावत है ना कि शूट फॉर द मून यू विल फॉल अमंग द स्टार्स, तो एग्जैक्टली वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है. Okay. Now Priya is asking one more question, that how a aspirant will be knowing that he will be securing a top rank. वो फीलिंग कैसे आएगा अंदर से? एग्जाम से देने से पहले क्या वो फीलिंग आ जाता है कि यार मैं एग्जाम फोड़ने वाला हूँ, आई विल बी अचीविंग अ वेरी गुड रैंक? एग्जाम के बाद वो फीलिंग तो आने बहुत लाजमी है, बिकॉज दैट टाइम यू कैन टेल योर आंसर्स फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की. पर एग्जाम से पहले ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या ऐसा फील आता है कि यार मैं फोड़ सकता हूँ एग्जाम को? सर मुझे याद है कि जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि जो एग्जामिनेशन वाला दिन होता है उस दिन कुछ चमत्कार नहीं होता है. वो जो एग्जामिनेशन वाला दिन होता है वो जस्ट एक टेस्टिंग लास्ट हर्डल होता है हमारे को टेस्ट करने का. हमारा प्रिपरेशन से ही डिसाइड हो जाता है कि हमारी क्या रैंक आने वाली है. तो द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि जब आप आखिरी में जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, और उसमें जो आपका स्कोर आ रहा होता है उससे मोर और लेस आपको पता लग चुका होता है कि
किस लेवल का आपका प्रिपरेशन है और आप जो गोल दिमाग में लेके चल रहे हैं दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट. सो आई वुड से कि एग्जामिनेशन के पहले ही मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि अगर मैं एक एग्जांपल भी दूं तो लास्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था. ओके. यस. सो आई कंसिडर दैट टू बी अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट कि कुछ अच्छा होने वाला है और इस बार मेरा अच्छा रैंक आएगा. बिल्कुल. आपकी बात से मेरे को जस्ट एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं, उनसे पूछा था कि यार अभी आप 40 इयर्स के हो गए हो, अभी भी आप इतना ग्राउंड में इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर लेते हो? क्या मैजिक क्या है आपके पास? तो सुनील छेत्री रिप्लाइड कि ग्राउंड में कोई मैजिक नहीं है. जो उसने प्रिपरेशन किया है, प्रॉपर डाइट लिया है, फिटनेस रखा है, वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मैजिक हैं जो फील्ड पे उसका आउटपुट आता है. एक्चुअल में जो पूरा मेहनत है, हार्डवर्क है, वो उसने बैक हैंड में किया था. ओके. तो एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि whenever engineering graduate appears for any competition exam, I didn't think that anybody is only preparing for GATE. He gives GATE exam also, engineering services also, sometimes state services also, PSU also, and BARC also. So all these exams are there. When he passed out from his college, he gives these much exams. So how a student or aspirant can prepare all these exams simultaneously? So the answer of this question is, sir, very simple. As per me, all these examination that you have talked about, no, all these examination are the extension of GATE only. मतलब गेट में जो हम कंसेप्ट सीखते हैं वही कंसेप्ट हम इन एग्जामिनेशन में भी अप्लाई करते हैं. ईएससी में थोड़ा सा सिलेबस का रहता है कि ईएससी में जीएस एक्स्ट्रा पूछा जाता है, बट अगर गेट की प्रिपरेशन हमने अच्छे से करी है एंड इफ़ वी हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना, तो हम कोई सा भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आराम से क्रैक कर सकते हैं. एंड ऑल दीज एग्जामिनेशन आर जस्ट अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ द गेट. ऑफ कोर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इफ इज इन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और पास आउट, he should be preparing a single subject a day or he can go with 2 or more subjects? Sir, as per me, an aspirant should, this can vary from person to person, but if you ask me, then I'll say that you'll have to go with only one subject, right? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि एक सब्जेक्ट हम एक बार में कंप्लीट करते हैं तो हमारा फोकस बना रहता है उस सब्जेक्ट में. बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना कि अगर एक सब्जेक्ट एट अ टाइम कर रहे होते हैं तो मोनोटोनस फील करने लग जाते हैं. तो ऐसे जो लोग हैं जो एक सब्जेक्ट करते हैं और मोनोटोनस फील करने लग जाते हैं, सो फॉर देम आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स ओनली. बट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं करने हैं, फिर कहीं के भी हम रह नहीं जाते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, तो सही से काम बन नहीं पाता है. ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट ट्राई टू अटेम्प्ट सिंगल सब्जेक्ट अ डे. यस. बट अगर वो बोर हो रहा है बच्चा, देन ही कैन गो फॉर 2 subjects. Yes. But in any case, not more than 2. नॉट मोर देन. And I also want to suggest the students that if they are going with 2 subjects a day, then those 2 subjects should not be very heavy. One can be heavy, another can be a lighter one. यस. ओके. कौस्तव, बहुत सारे बच्चे के बिहाफ से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि when in your first attempt you didn't get your desired result, what you have targeted for, and that time how you keep yourself motivated for the next GATE exam? सर, ये मैंने सेशन में भी जैसे डिस्कस किया था कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था और उस अभिनव बिंद्रा का, तो उससे मुझे मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन कहूँगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी समझने लग गया था कि मैंने मेहनत किया एंड समहाउ ड्यू टू माई बैड लक आई कुडंट गेट ओवर द लाइन. बट जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो बाकी बड़े बड़े लोगों के कंपैरिजन में बहुत छोटी प्रॉब्लम है जिनको लेके मैं इतना मतलब टेंशन में हूँ. तो मैंने उसके बाद फिर यहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, यहाँ से मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद, और फिर मैं एक अच्छी रैंक लेके आया. बिल्कुल. बहुत सारे बच्चे टेंशन में ही रह जाते हैं. हाँ. और प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाते. हाँ. जब वो स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी आएगा, तो आफ्टर सम टाइम वो कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा, वो बिल्टअप होने लग जाएगा, चीज़ें कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करके आउटपुट भी आएगा. बहुत समय ना स्टूडेंट्स में से पूछते भी हैं कि सर हाउ टू मोटिवेट अवर सेल्फ. तो मेरा सिंगल आंसर रहता है यार कि अगर आपको कोई भी मोटिवेट करता है, अभिनव नेगी हो या कोई भी और इन्फ्लुएंसर हो, आपको मोटिवेट करता है, दैट मोटिवेशन विल बी फॉर 7 days एट मैक्स, फॉर 1 month और 2 month. पर जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो सॉल्यूशंस आपके सही आते रहते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है. और गेट का प्रिपरेशन विल बी फॉर 8 months और 9 months. तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है. किसी और के मोटिवेशन से आप सिर्फ 7 दिन या 10 दिन मोटिवेट रह सकते हैं. बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एवरी ब्रांच, सो अ सिंगल स्ट्रेटेजी शुड बी देयर फॉर एवरी सब्जेक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स द स्ट्रेटेजी कैन वेरी.
सर जो अगर हम गेट की बात करें तो गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पहचानना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सीधे टीचर हमें जो बताता है हम वो ग्रास्प कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चंस भी बनने लग जाते हैं। बट देर आर सम सब्जेक्ट दैट डिमांड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमारा तरीका ये होना चाहिए उनको टैकल करने का कि हमें उनमें एक नॉर्मल सब्जेक्ट से यूजुअली ज़्यादा टाइम देना है और उसमें मास्टरी अटेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है और फिर जाके अपने आप को जज करना है कि ये सब्जेक्ट हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, 2022 में आपका 11 रैंक आया। यस सर। कितने दिन पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ आप रिवीजन या टेस्ट सीरीज दे रहे थे? सर मेरा जो सिलेबस था वो सर नवंबर 15 को मैंने इस बार कंप्लीट कर लिया था। नवंबर 15 या दिसंबर के पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। रीज़न बीइंग कि कंप्लीट एक बार सिलेबस करने के बाद आपको 2 महीने एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास कि टेस्ट देने के लिए और अपनी जो मिस्टेक्स है उसको ओवरकम करने के लिए। तो नवंबर के एंड में मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया था। ओके, और when you will suggest to your juniors, those who will be giving GATE exam in upcoming years 2023, 24 or 25, then what is the right time to start for the GATE exam? कि अगर सर राइट टाइम की अगर मैं बात करूं तो एज पर मी द राइट टाइम टू स्टार्ट द गेट एग्जामिनेशन इज सेकेंड ईयर। अगर हम थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सेकेंड ईयर से अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑन अराउंड 3 सेमेस्टर्स हैं, राइट। गेट की जो प्रिपरेशन है जैसे कि आपने अभी बताया कि 8 महीने या 10 महीने की है, तो अगर हम 3 सेमेस्टर हमारे हाथ में लेके चलेंगे तो अगर हम थोड़ा सा थोड़े ढीले भी पड़ गए, हमने थोड़ी मेहनत नहीं भी करी तो वी हैव सम स्लैक कि हमारे पास कुछ स्लैक है, तो हम 3 सेमेस्टर लेके चलना चाहिए ताकि हम स्लैक आने के बाद भी हम अपना कोर्स सही समय पे कंप्लीट कर सकें। ओके, कौस्तव, एक मेरा खुद का क्यूरियोसिटी है क्वेश्चन पूछना। यस सर। आपका स्पॉटलाइट भी हमने लिया था हाँ। यूट्यूब पर। यस सर। अभी आप वर्कशॉप भी देख रहे हैं, ले रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं यस और सर। मैं आपका कॉन्फिडेंस देख रहा था क्योंकि अभिनव नेगी एक यूजुअल टीचर है Yes, जो sir. रोज कैमरे के सामने आता है और बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता है। हाँ। आप भी अपने रिजल्ट के बाद बहुत बार आए पर Yes, इतना sir. फ्रीक्वेंटली नहीं आए होंगे जितना एज अ टीचर हाँ। मैं आता हूँ। आपका तो काम ही यही है। हाँ, तो मैं देख रहा था आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन स्किल आउटस्टैंडिंग है। यस सर। तो बस मेरा ये क्यूरियोसिटी है कि ये एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद हुआ कि पहले से आप सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी ऐसे ही थे एकदम फ्रैंक? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो मेरे फादर हैं वो काफ़ी अच्छे मतलब बोलते हैं, तो वहीं से ही मुझे जेनेटिकली मतलब ये मिला है कि मैं भी अच्छा Ability. बोलता हूँ। यस, कि अगर मैं अपनी पहले की भी बात करूँ तो स्कूल टाइम पे भी मैं आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, मैं इसमें लेते रहता था। तो उस समय से ही मैं आई वाज अ गुड स्पीकर। तो Okay. अभी रैंक आने के बाद ना अब एक रैंक आ गया तो लोग अब और सुनना भी चाहते हैं एटलीस्ट। पहले शायद कोई सुनना नहीं चाहता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं स्पीकर तो उस समय भी ठीक ही था, अभी भी मैं हूँ वैसा ही, बट अब शायद रैंक आने के बाद कुछ लोग सुनना ज़्यादा चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, करेक्ट। कौस्तव, गेट ऑल इंडिया रैंक 11 आपने अचीव कर लिया है। यस सर। इसके बाद आपके फ्यूचर के क्या प्लानिंग है? इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या कुछ और आपका प्लान है? कि सर जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई कैन स्पीक वेल, तो मेरा भी प्लान ये काफ़ी मतलब यूजुअल से हट के है थोड़ा, कि काफ़ी लोग क्या करते हैं गेट की एग्जामिनेशन और ये इसलिए लिखते हैं कि उन्हें PSUs जाना होता है। Okay. कॉलेज के टाइम पे मेरा भी डिसीजन यही था कि मैं PSUs के लिए जाऊँगा, बट समहाउ इन दी लास्ट 2-3 ईयर्स आई रियलाइज दैट आई एम गुड एट स्पीकिंग, प्लस मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मेरे पास है और मैं लोगों से अच्छे से बात कर लेता हूँ। तो अब मैं भी आपकी तरह ही टीचिंग फील्ड में आना चाहता हूँ एंड यू नो आई वुड लाइक टू बी द अभिनव नेगी ऑफ मैकेनिकल। Okay. So all the best for your future Yes, sir. endeavors. So guys, this was Kaustav Mishra who secured All India rank 11, and I hope that you have learned a lot from his journey and you got an inspiration. And also guys, one more information to all of you that till 19th of October we have a mega mock challenge where you can attempt a test. That test is actually as per GATE pattern, and if you give that test and you score well, then guys you will be knowing your rank out of the thousands of the students that are giving that test, and that will boost your performance for the GATE examination. Thank you. Take care.